ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହୃଦୟରେ ଜନମି ଅଛି, ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସ୍ନେହାଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଜପୁର, ସପଟେକା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏ ଭର୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ପାଠଟିଏ ପଢ଼ିବା। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର, ପୂର୍ବସୂରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ এই ଚିତ୍ରକୁ। এই ଚିତ୍ରରେ ଆମ ଶ୍ରେଣୀ ନବମ, ବିଷୟ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଜୀବନ। এই ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର। এই ଓଡ଼ିଶା ଚିତ୍ର ଯୋଉଟାକି ଆମ ଆଜିର ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର। ଆମ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା 1937 ମସିହା ଅପ୍ରିଲ 1 ଦିନ। ତା ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଫେରିଯିବା ଯେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ନାମ ଉତ୍କଳ ଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଯେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହା ନାମ ଉତ୍କଳ ହୋଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ପଳେଇଯିବା ଆଉ ଟିକେ, ଏହା ନାମ ଥିଲା କଙ୍ଗୋଦ ଥିଲା, କୋଶଳ ଥିଲା ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା। ଏବଂ ଏହାର ପୁରାତନ ନାମ ଥିଲା ଓଡ୍ର। ଓଡ୍ର ଜାତୀୟ ମାନେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜାତି ଥିଲେ। ସେମାନେ କୃଷିକୁ ଜୀବିକା ଉପରେ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ତତ୍ପରେ କଳିଙ୍ଗ ମାନେ କଳିଙ୍ଗାହା ସୁରାହା। ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, সেই ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ବୀରଦର୍ପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଅଶୋକ, ଯୋଉ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଆମ ଉତ୍କଳ ମାଟି ହିଁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାଟି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ସେଇ ମଗଧ ରାଜା ଅଶୋକଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘ ବାହନ ଖାରବେଳ। ତ ଖାରବେଳ ଯୋଉ ବିଜୟ ଗାଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ। ତମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଯୋଉ ଆମର ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଚିତ୍ର, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, এই ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର ଏବେ ସୀମିତ ଅଛି। ଇଏ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଠାରୁ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆମର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ, ଆମ ଭିତରେ ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷା, ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆପେ ଆପେ କଣ ହେଇଗଲା ନା ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁକ, କୁଷାଣ, ମରାଠା, ମୋଗଲ ମାନେ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଯେ ଆମ ଭାଇଚାରାକୁ, ଆମ ଅସ୍ମିତାକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କିଛି ହିଁ, କୋଉଟା ମସ୍ତକ, କୋଉଟା ତାର ଅଙ୍ଗ, କିଛି ହିଁ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ମାତା ବନ୍ଦିନ ହେଇଗଲା ଏବଂ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସାରା ସଂସାରରେ ଉତ୍କଳ ମାଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେଲା। ତେଣୁ ଏହିପରିକା ଯେତେବେଳେ 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଖଲ କଲେ, ଉତ୍କଳକୁ ଦଖଲ କଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବରେଣ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଲେଖା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ପିଲେ ସମସ୍ତେ
ए चित्र को आम देखिपे मधुबाबू चित्र उत्कल मधुसूदन दास जातीय जीवन हूँ मधुसूदन दास और फिर यही फोटो को तुम देखिपार यही माने महापुरुष प्रातस्मरणीय जो माने स्वतंत्र ओडिशा गठन लगी यही माने होचंती उत्कल गौर मधुसूदन दास उत्कलमणि गोपबंधु दास व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति पंडित नीलकंठ दास महाराजा श्रीरामचंद्र भंज एवं उत्कल केशरी हरकृष्ण महताब उत्कलमणि गोपबंधु दास एवं नीलकंठ पंडित नीलकंठ दास एमती आहरी अनेक कर्मवीर गौरीशंकर दास एम द्वारा आप्राण उद्यम द्वारा आमर ओडिशा गठन होता तेनाली ये देखु सी जो मधुबाबू कहते आधुनिक ओडिशा निर्माता उठरे उठरे उत्कल संतान उठिबु तु केते दिने पूर्व गौरव पूर्व साहस पड़ब कि केबे मने तेणु से आम उत्कलीय मानक भाई बोली संबोधन करते से भाई बोली संबोधन करी से कहते जो जाति जो पूर्व पुरुष माने गंगारू गोदावरी पर्यंत शासन करुले साधव पुओ माने वाणिज्य व्यवसाय करी धनरत्न परिपूर्ण करुले से उत्कल जाति आज चिरनिंदनीय हो पड़ी तेणु हे भाई हे उत्कल भाई माने तुम उठ आउ से कौन गाई यही सम्मिलनी जाति प्राण सिंधु कोटि प्राण बिंदु धरे तोर प्राण बिंदु मिसाई दे भाई दे पड़ी सिंधु नीरे तेणु से पुनश्च उत्कल मानक आह्वान देते हे उत्कल भाई माने ये जो तुम प्राण अच्छी जो प्राण टिक अच्छी आम समस्ते कौन कर आम स्वार्थ को परित्याग करी आम उत्कलीय सिंधुरे आम डे पड़ा एवं उत्कल भारत उत्कलीय मार सेवार आम कार्य करवा निजर जीवन जाति को अर्पण पिलाटा जाति को हम निजर जीवन जाति को अर्पण कले मिले जाति प्राण जातीय जीवन न मिल कले हाथे बाटे अन्वेषण निजर जीवन जाति को अर्पण है पिले निजर जीवन जाति को अर्पण कले मिले जाति प्राण जातीय जीवन न मिल कले हाथे बाटे अन्वेषण तो से यही परीक्षा आह्वान करते आम स्वार्थ को आम परित्याग करी जाति प्राण मिशीजा एवं जदि आम निज स्वार्थ को बलिदान नदबा खाली आम हाट बाट सब खोजा अन्वेषण करवा तेरे आम जाति उन्नति हो पार नहीं आम प्राबंधिक लेखकर परिचय विषय पढ़ा नाम उत्कल गौरव मधुसूदन दास जन्म 1948 मसीहा अप्रिल 28 तारीख पिता चौधरी रघुनाथ दास माता पार्वती देवी स्थान कटक सत्यभामापुर पिले कटक सहर ठार मात्र 10-12 माइल दूर हम एवं ये जन सम्राट परिवार जन्म होते बापा चौधरी रघुनाथ दास एते दान धर्म करुले मंदिर मस्जिद गठन साहाय्य करुले गरीब दुखी रोगी मानक जे जन्म बेलू अभाव हो जाता यही मधुबाबूर जन्म समय तथापि से सेवा करिया मनोवृत्ति उच्चाकांक्षा केवे छाड़ी नथिले से पाठ पढ़ाई प्रचंड इच्छा शक्ति आग्रह थिला एवं से कौन करते से पाठ पढ़ी जीवन संक्षिप्त कहीदे पाठ पढ़ाई से जिते सुदूर कलकता को जावाई पैसा नाला तथापि से बहुत कष्ट कर पिले आम शिक्षा करवा जे जेते कष्ट आसुना कहीं आम आम कर्म क्षेत्र परित्याग करवा नहीं तेणु आम उदाहरण दबा आमर प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी आमर यशस्वी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू महोदया एवं आमर यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझी एमाने केते छोटू आज बड़ होती तेणु तत्सहित जो थिला आमर पूर्वतन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से खबर कागज बिकुले आम प्रधानमंत्री चाहा बिकुले तेणु आम शिक्षा करुचे कौन से जो मैंने बर्तमान नेतृत्व नौन देश राज्यर से ही आम यही मधुबाबू शिक्षा कर महापुरुष मान शिक्षा कर महापुरुष जीवनी को आम पढ़े जापर से केते कष्ट कर बाधा विघ्न सही यही निजे से मनीष ही जाति को देश सेवा कर बड़ होती एवं से एमती भाव कार्य कले जे आम ओडार प्रथम सब जगह प्रथम हो पाए प्रथम से आईएफएस पास कले प्रथम बीए पास कले बीए
एल वकिल हेले प्रथमे एमए कले प्रथमे वकिल हेले प्रथमे विदेश इंग्लैंड को यात्रा करथिले प्रथमे से जो बंग बिहार उत्कल विधानसभा सभ्य होइथिले एवं से आम जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अध्यक्ष होइथिले एवं से एमती मध्य महान थिले आम शुणिले आश्चर्य हवा सबुद से प्रथम थिले मंत्री पद थाइकिनी से मंत्री पद 1921 मसीह 5,000 टका दरमा दिया मासक 5,000 टका जार मूल्य आजिकल हम 10 लाख टका हम मासक दरमा तो सी मना करदे जे मु जदि मंत्री माने प्रकृत लोक मानकर जनसाधारण सेवक तो से दरमा नियंती ना तेणु अन्य मंत्री मान सहित जेहेतु यही कथार जुक्ति है तेणु सी बाध्य कौन कले कहले मु दरमा नेबी ना यदि मु दरमा मत दब तो मुझे कार्य करी ना कहीं से निज मंत्री पद को परित्याग करते तेणु यहीपरी हूँ से देखो उपाधि दिखाई कुलवृद्ध कहीं कुलवृद्ध कहगला 1923 मसीहा बेलू सी वृद्ध हो जाते तेणु से कौन करते ना जो मैंने दायित्व थे आमर उत्कलमणि कर्मवीर गौरीशंकर राय और अन्य मानक से दायित्व देकिनी तो कुलवृद्ध कहुच्छी कूलर जी श्रेष्ठ वृद्ध एवं मधुबाबू कहीं कहुच्छी मधुबाबू कहीं कहुच्छी पाठ पढ़ी मधुबाबू संगे लड़बी कालिया घोड़े चढ़ी मो देशर उन्नति करी मो ओडिशार उन्नति करी मो माटीर उन्नति करी मो बापा माँ टेक रखी मो स्कूल टेक रखी तेणु पिले इमती आम जो 1930 मसीहा बेलू आम सारा ओडिशा कौन होता पिले ना गाँ गंडार गोटे छोट पिलाटी चाटशाला पाठ पढ़ुला ना यही गीत गाउला पाठ पढ़ी कालिया घोड़े चढ़ी मधुबाबू संगे लड़बी कालिया घोड़ा कहीं मधुबाबू अति प्रिय थिला घोड़ा से घोड़ा गाड़ी टांगारे सी सारा कटक सहर भ्रमण करुले तेणु से मधुबाबू कहला पुणी पिला आउ गोटे कथा जानले भी हो तुम जाच तुम परी छोट पिलाटीए गाँ चाहाईर चाट सीए चेहराटी तार डौल डाउल बुधे ताहार सरी किए तो पिला तुम बयस आहरी छोट पिलाटे चाटशाली थिला जोटा आम कहूचे प्रथम श्रेणी अंगनवाड़ी कहूचे से समय मधुबाबू कविता तुम पढ़ीच लेकिन छोट पिलाटी एत उच्च मना होगी से कमी गाँ रास्त सांग मान डाक गाँ रास्ता को गाँ रास्त मटी गोड़ी पकई समतुल करता तेना आम कथा तुम मैंने पढ़ीच विषय आहरी पढ़ीच जे आमर विषय जो पढ़ीच तुम आम जैसे केमिति आम उत्कल गरीब मान कांदी उठुले एवं अभुला दिन स्मृति जो स्मृति पढ़ीच से केमिति गरीब मान क्षीर कले मधुबाबू गरीब हो पछे केबे गरीब मान क्षीर बिकब ना कथा बिक्री हो जाऊ बही नीलाम हो जाऊ सब किसी हो जाऊ तेणु एमती से अनेक उत्पत्ति पाई रचनावली हूँ उत्कल संतान से 7टी उद्बोधन संगीत लिखिले उत्कल संतान जाति इतिहास जननीर उक्ति जो गुड़िक मुझे गीतटी अच्छी यही सम्मिलनी जाति प्राण सिंधु कोटि प्राण बिंदु धरे तोर प्राण बिंदु मिसाई दे भाई दे पड़ी सिंधु नरे यहीपरि अनेक अनेक से गीत लिखिले जो गीत द्वारा खाली आम कथा कहले भाषण देले से सुंदर भाव वक्ता थिले तेणु आम नेक्स्ट जीवा विशेष कृति 1903 मसीह उत्कल सम्मिलनी गठन करथिले गठन करथिले एवं से गठन हवा द्वारा आमर उत्कल स्वतंत्र ओडिशा राज्य 1937 मसीह अप्रिल मास दिन पूर्णांग रूप करथिला देखिपार प्रसंग उपस्थापन ये चित्रटी आम समस्त देखिपारे ये हूँ 1903 मसीह अनुष्ठित ऐतिहासिक गंजाम सम्मिलनी ये 1903 मसीह ही प्रथम श्रीरामचंद्र भंजदेव जे कि मयूरभंज राजा सभापतित्व करते किंतु चेयरमैन थिले किए उत्कल गौरव मधुबाबू थिले एठी हमर आछि एठी केते जन जन अछन देखो उत्कल गौरव मधुसूदन दास अछंती फकीरमोहन सेनापति ताका पाखर कर्मवीर गौरीशंकर रॉय सदाशिव विद्याभूषण कवि नंदकिशोर बल पल्ली कवि नंदकिशोर बल पंडित गोपीनाथ नंद पंडित गोपबंधु दास उत्कलमणि गोपबंधु दास एवं नीलमणि विद्यारत्न यहीपरि अनेक प्राय 60 जन स्थायी सभ्य ये उत्कल सम्मिलन में आमर समाहित होते
এবং সেই উৎকল সম্মিলনী পিলে ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ସେଇ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସେ ଡାକିଥିଲେ କୋଉମାନଙ୍କୁ ନା ବଙ୍ଗୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ମାରୱାଡି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେଇ ଜାତି ମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ପିଲେ ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷ ଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ଜାତି ମୁଁ କହିଲି ବଙ୍ଗାଳୀ ବିହାରୀ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ମାରୱାଡି ମରାଠା ଏଇମାନେ ଆମ ଉତ୍କଳ ଜାତିରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଆମ ଉତ୍କଳ ଜାତି ଗୋଡ ଟଣା ଥିଲା। ଯଦି କଙ୍କଡା ଗୋଟିଏ ଚଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୋଝରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ତା ଗୋଡକୁ ଟାଣି ଦିଏ ସେଇପରିକି ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ଆମ ଓଡିଆ ମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଦେଖ ବଙ୍ଗୀୟ ମାନେ କେଡେ ଏକତା ଅଛି କେଡେ ଶିକ୍ଷିତ ତେଲୁଗୁ ମାନେ କେଡେ ଏକତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠାରେ ସିଏ ଉଦ୍ବୋଧନ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଯେ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଓ ମାନବର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରାଧୀନ ଉତ୍କଳ ମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାର ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏଥିରେ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଜୀବନ କହିଲେ ଯାହାର ତ ଜୀବନ ଯାହାର ଜୀବନ ଯିଏ ଜିଇଛି ସେ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ନିରୂପଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଯୋଉ ପରାଧୀନ ମାନେ ଉତ୍କଳ ମାନେ ଯୋଉ ପରାଧୀନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଗଠନ କରି ଜାତୀୟତା ସ୍ରୋତରେ ସେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ମୁଖ୍ୟ ତମମାନଙ୍କର ବହିରେ ଯୋଉ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି କି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଉ 1904 ମସିହାରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କଟକ ଠାରେ ହେଇଥିଲା। କଟକର ଇଦିଗା ବଜାର ପଡିଆରେ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ସେ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି କି? ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଜୀବନ ଯିଏ ଜିଇଛି ସେ ଜୀବନ ହେଲେ ମଣିଷ ବି ଅଛି। ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଯଦି ଗୋଟେ ମନେକର ପିଲା ଶୋଇଛି ବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୋଇଛି ତା ଘରେ ଗୋଟେ ସାପ ପଶି ଯାଇଛି ତା ବିପଦ ପଶିଲା ତା ମା ଡାକୁଛି ଉଠରେ ଉଠରେ ବାବୁ ଉଠରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଉଠୁନି ଏଟା କଣ କହୁଛେ ଆମେ ଆଉ ତୋର ଜୀବନ ଅଛି କି ନାଇଁ ଘରେ ପରେ ବିପଦ ପଡିଲାଣି। ତେଣୁ ଜୀବନ କହିଲେ ଖାଲି ଜଣେ ନାକରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ସେ ଜୀବନ ନୁହଁ। ସେ ତାର କର୍ମକୁ ହିଁ କହିବ ଜୀବନ। ସେପରିକି ଆମେ ଏଠି ଆମର ତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି। ଜାତି କହିଲେ ଆମେ ଏଠି କହିବାନି ଯେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ କଣ୍ଡରା କିମ୍ବା ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କିମ୍ବା ଶୂଦ୍ର ଏ ଜାତି ହିଁ ନୁହଁ। ଏଇ ଜାତିକୁ ଆମେ କହିବାନି ଜାତି। ଜାତି କହିଲେ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଜାତି କହିଲେ ଯେମିତି ୟୁରୋପରେ ନେସନ ଅଛି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାତି ଇଟାଲୀ ଗୋଟେ ଜାତି ଜର୍ମାନୀ ଗୋଟେ ଜାତି ଜାପାନୀ ଗୋଟେ ଜାତି ସେହିପରିକା ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତିକୁ ସେ ଜାତୀୟ କହୁଛନ୍ତି ଜାତିକୁ। ତେଣୁ ଏଟା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ଆମର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି କି ସେ ଉତ୍କଳ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ପିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି ମୋର ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ତାହା କାଲି ଶ୍ମଶାନ ଶେଷ ହବ। ପିଲେ ସତେ ତମେ ଜାଣିଛ ଜାତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସତ୍ୟ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଦିନେ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ହିଁ ଦିନେ ମରିବ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନଟା କୋଉଠି ସରିଯିବ? ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତ ଅଛି ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତ ଲୀନ ହେଇଯିବ ଶ୍ମଶାନ ବା ଶ୍ମଶାନ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଶରୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଆତ୍ମା ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ମତେ ଯେ ଟାଣୁଛି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଅପତ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଅପତ୍ୟ କହିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର କୋଠା ବାଡି ଘର ଗାଡି ବଙ୍ଗଳା ଏଟା ସମ୍ପତ୍ତି ଭୂତ ପାର୍ଥିବ ଭାବ ଗୁଡିକ ମତେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତଳକୁ ଉଠାଉଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଅଛି ଇଏ କଣ କରୁଛି ଇଏ ମତେ ତଳକୁ ଟାଣୁଅଛି। ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣ ମୋର ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ମତେ ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଟାଣୁଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଲେଖକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମଲୟ ପରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆମର ଅଛି ସେ ଆତ୍ମା ପରିତ୍ରାଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଶିଯିବ ସେ ଅନନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ଦବ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଞ୍ଜାଳରେ ମୁଁ ଘାଟି ହେବି
तेणु मत तो दिन मरिया को पड़ो मत संसार विदाय ना पड़ो चतुर्पार्श्वर अन्य जाति समाज विद्यमान तो सी उत्कल मान कहते आम चारिपार्श्व जो जाति अच्छी जो बंगाली जाति अच्छी तेलुगु जाति अच्छा बिहार जाति अच्छा यही मैंने सब समाज विद्यमान से जाति और समाज मान संगे संगे जीवन मिलाई आलाप करवा आम गोटे प्रधान कर्म से आह्वान दौरान जो जाति मैंने आम ओडिशा चतुर्पार्श्व अच्छा उत्कल चतुर्पार्श्व अच्छा से सहित आम मिसेकिनी आलाप करवा कथबार्ता करवा संपर्क रखा प्रधान कर्म जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले जाति जाति मध्य सद्भाव हे तो जातीय जीवन प्रतिष्ठित जदि आम जाति जीवन भरीदवा तो कौन हम जाति जाति मध्य सद्भाव हम संपर्क बढ़ जाति जाति मध्य जो सद्भाव कहीं उच्छेद हम ना तो जाति जाति मध्य संपर्क बढ़ीगला से केवल उच्छेद हम ना केवल से कटो ना कि व्यक्तिगत सद्भाव चिरस्थायी नुहे या क्षण भंगुर यदि व्यक्तिगत सद्भाव कहले मुझे तुम मान संपर्क रखिली मु आज्ञा मान संपर्क रखिली मो भाई सहित संपर्क रखिली ये क्षणस्थायी क्षण भंगुर टे कथार कटिज निश्चित मेरा पिले बुझीपार कहीं कहीं एपरी विचार करते जातीय सद्भाव है व्यक्तिगत असद्भाव रहा पुणी से आमर प्राबंधिक मधुबाबू सी पुणी भाषण दौरान कहीं कहीं एपरी विचार करते जातीय सद्भाव है जातीय संपर्क बढ़िले व्यक्तिगत असद्भाव रहा सद्भाव विपरीत असद्भाव एपरी विचार भ्रांतिमूलक जातीय जीवन प्रतिष्ठा हेले व्यक्तिगत विवाद लोप पाइबा असंभव जातीय जीवन प्रतिष्ठा हेले व्यक्तिगत विवाद लोप पाइबा असंभव से सुंदर भाव में कहते जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले व्यक्तिगत विवाद लोप पाइबा असंभव एपरी कहीं मन करेंगे ना जे उत्कल जातीय जीवन प्रतिष्ठित हो तहिर मूलदुआ दृढ़ हेले आम देश में व्यक्तिगत विवाद आदौ रहा और अदालत गुड़िक उठीज से सुंदर भाव में गोटे उदाहरण देते आम जो आम व्यक्तिगत भितर जो अच्छी जो द्वंद्व अच्छी जो कलह अच्छी ताकू आम दूरे देकिन आम जातीय सद्भावना सृष्टि करवा तेणु उत्कल जातीय जीवन प्रतिष्ठित हो तहिर मूलदुआ दृढ़ हेले आम देश में व्यक्तिगत विवाद आदौ रहा इन भाव उचित नुह जे आम मनकर बंगाली सहित मिसवा बिहारी सहित मिसवा तेलुगु सहित मिसवा कहीं से मांद्राज थिला ना तेणु आम व्यक्तिगत कौन लोप हो तेणु कौन आम जो कोर्ट कचेरी अच्छी ता कौन लोप हो ना से मत दौरान से लोप हम ना मु कौन शिक्षित और प्रदत्त उत्कल तल लिखित मनमरे चिठी पाई से कहते जे जड़े शिक्षित से जन उच्च शिक्षित पदस्थ उत्कल अफिसर को से चिठी पाई मो संगे आपण मान मन मिला ना से चिठी लिखिदे गोपबंधु उत्कल गौरव मधुसूदन पाखक से शिक्षित उत्कल जनक मो संगे आपण मान मन मिला ना अतएव मु सम्मिलन कार्य करि यहीपरि से लिखी सहित मोर मतामत मिला ना मो मन मिशुनी आपण मत अलग मो मत अलग मु तेणु सम्मिलन में जोग दे पारे एथुरु कारण आम मान जातीय जीवन अभाव से सुंदर भाव में कहले व्यक्तिगत भितर जहाँ दोष था ना कहीं किंतु जातीय जीवन अभाव परिलक्षित होना जातीय जीवन गठित हेले व्यक्तिगत जीवन असद्भाव थिले सुधा जातीय अनुष्ठान समस्ते मिली मिलवा ना कार्य करें मिलमिशी कार्य कर सन्देह ना से सुंदर भाव में कहले जे आम व्यक्तिगत भितर जहाँ असुविधा थाऊ जहाँ झगड़ा थाऊ ताकू आम दूरे कि आम जातीय जीवन गठित हेले व्यक्तिगत भाव में जहाँ असद्भाव थी ताहा सुधा जातीय अनुष्ठान समस्ते मिलमिशी कार्य कले कार्य करिपरिबा एते संदेह ना से सुंदर भाव में आम नेक्स्ट स्लाइड को जा पे देख कठिन शब्द तुम मैंने सब जान क्षणस्थायी अल्प समय अभ्यंतर भितर कहे आम शरीर अभ्यंतर अनेक अंग प्रत्यंग अच्छी क्षणस्थायी यही आमर जीवन क्षणस्थायी विद्यमान उपस्थित अपत्य पुत्रकन्या पुओ झील परित्राण उद्धार आम कहे जदा जदा ही धर्मस्य ज्ञानी भवती भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्य तुरात्मन सुजमेहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुमे जुमे जिते संसार रे कौन जाति कौन देश एवं मनुष्य मान भीतर विपद पड़े से समय भगवान कौन करते उद्धार करने साधु सन्त मान परित्राण करने दुष्ट मान विनाश करने धरास्पृष्ट जन्म ग्रहण करते उत्कल मान उद्धार करने स्वयं
जे कि उत्कल नवनिर्माता उत्कल गौरव कुलपुध मधुबाबू जन्मग्रहण करते तेणु आलाप कले कथबार्ता है मो बंधु सहित मो सांग सहित सुंदर भाव कथबार्ता करे सद्भाव बंधुभाव समस्त सद्भाव रखा उचित उच्छेद ध्वंस जे आम बर्तमान जो भाई जंगल को आम उच्छेद करुचे ध्वंस करुचे दिन आम पृथ्वी आम भस्म हो चिरस्थायी सर्वदा आम जो काम करवा से सबुदिन धर्म गले चिरस्थायी भ्रांतिमूलक भूल धारणा आम आम जाति भितर जो आम व्यक्तिगत भितर जो भूल धारणा अच्छी आम दूरे दबा ये निश्चय तुम समस्त कठिन शब्द को सुंदर भाव में बुझीपार नेक्स्ट जी आम आम कौन शिखिले आम कौन शिखिले पिले जो पाराटी पढ़ले अनुसार आम मान जो जीवन परिलक्षित हुए ता व्यक्तिगत जीवन सत कथा आम जो जीवन व्यक्तिगत जीवन मु खाइली मु घर कली मु बिल्डिंग कली ये सब व्यक्तिगत पार्थिव जो आकर्षण शक्ति अर्थात मो स्त्री मो अपत्य मोर संपत्ति भूत पार्थिव भाव गुड़िक मत प्रतिक्षण तल को उठाऊँच तेणु जदि आम कह मोर मोर सब जब कह मोर मोर कहवा दिने मोर माने मर मोर 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 तेणु यहीपरिका आम जो स्वार्थ पर व्यक्ति चिंता करती किंतु ऊपर कौन कहते प्राबंधिक ऊपर स्वर्गीय जीवन आकर्षण शक्ति अच्छी जोटि भगवान परमेश्वर बसवास करुँच मोर प्राण परित्राण मोर अनंत विश्राम स्थान मत सर्वदा ऊपर को टाणुची तेणु प्रकृत में आम सनातन धर्म कौन कहूँ जो मुख्य मुख्य जे आम दिन ना दिन मनीष मरब मर्त्यमंडल देह बही देवता होइले मरई तेणु यही संसार में जदि जी जन्म ग्रहण कर देवता हेले मृत्युवरण करुच्ची तेणु मृत्युवरण कले आम कौटी जा आम ईश्वर निकट को जा से परमेश्वर निकट को जा से आमको जावाई से कहते जो आम अनंत विश्राम स्थान आम आ संसार को जन्म ग्रहण करवा ना देख पे नेक्स्ट स्लाइड को जा चित्र देखिपार चारोटी चित्र अच्छी ये चित्र देख मनीष तुम सब जानूच जे भगवान गौतम बुद्ध भगवान यीशुख्रीष्ट भगवान महावीर शंकर कबीर महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद उत्कलमणि गोपबंधु दास एवं वीर सुरेंद्र साय बाजी राउत बिरसा मुंडा ये मैंने कौन न कहते जीवन देते तो से कहीं गौतम बुद्ध राजपुत्र होकर राज सिंहासन परित्याग करते से देखी जो चारोटी अवस्था गोटे अवस्था हूँ ये देखुच पिले बुढ़ीटीए भिक्षा मागुची भिकारी तेणु जो मनीष अभाव हो जाए से भिक मागे दांड रास्तार भिक मागे तेणु ये हूँ दुखर विषय तापर देख पिले ये गोटे देखुच आम देखुचे कौन एवं नानो फैमिली जो कहते आम संसार में जे आम स्वामी स्त्री आमर पुओ झी है यही परिवर्तन आम सब स्वार्थपर हो गले ये देखुच तापर आम देखा ये देख पिले आजिकल देखुच खबर कागज टीवी रे आजिकल लोक मैंने कौन एत स्वार्थपर हो गले जे कौन कहते आमर उत्कलमणि गोपबंधु कहते विशु मोर देह एदेश माटी देशवासी चली जात पिठी तो सी आह्वान देते देश स्वाधीन पूर्व देते मोर रक्तमांस मिशु यही संसार में मो रक्तमांस मो रक्तमांस खाल खमार पूरी हो तापर मोर देशवासी चली जातु किंतु आजिकल कौन कह मिशु मोर धने देशवासी धन यहीपरिका हूँ तो लोक मैंने कला टंका कोटी कोटी टंका जुगाड़ कर घर कर भिजिलांस रेड होगी जेल जाऊँगी तेना ये हूँ क्षणस्थायी या प्रतीक कराई यहीपरिका घर करवा ये क्षणस्थायी ये क्षणस्थायी संसार में लोभ मोह माया किसी ना देख चतुर्थ चित्र टी देखिपार ये हूँ परम शांति मोक्ष दिने दिने समस्ते आम कौन करवा निश्चय आम बुध समय बुढ़ी समय आमको शांति आम जीवन यापन करवा शेष मुहूर्त मला बेलू जब आमको हरिनाम जप हम एवं आम जो शुणा प्रशंसा शुणी आम मला जदि लोकटा भल थिला से चलीगला यहीपरि शुणिले ही आम मुख्य ईश्वर निकट को मुख्य पाइबा यही चारोटी को आम समस्ते देखिपारुचे निश्चय चित्र आम देखिले आम नेक्स्ट देखा आम कौन शिखिले जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले जाति जाति मध्य जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले जाति जाति मध्य सद्भाव जातीय सद्भाव हेले व्यक्तिगत असद्भाव रही एपरी विचार भ्रांतिमूलक प्राबंधिक से सुंदर भाव में
ସେଠି ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଏପରି କେହି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତହିଁର ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ ହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଯିବ ଅଛି ଉଠିଯିବ ସେଟା ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏପରି କେହି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତହିଁର ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ ହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦକୁ ଭୁଲିକିନି ଆମେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିବା ବୋଲି ସେଠି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅସଦ୍ଭାବ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବରେ କିଛି ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଏ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ 4ଟି ଏଠି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ନେଇ ଝଗଡା ହଉଛି, ମାରପିଟ ଝଗଡା ହେଲା। ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ସେ ଦେଖଉଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଟା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର କେନିଆ, ତାର ଏଇଟା ହଉଛି ଜାତୀୟ ପତାକା। ଇଏ ଆମେରିକାର ଆମେରିକୀୟ ଜାତୀୟ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆମେ ଆମେରିକୀୟ ଜାତୀୟ, ଏ କେନିଆ ଜାତୀୟ। ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାରେ ଆମ ପ୍ରତୀକ ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ। এই 4ଟି ସ୍ଲାଇଡକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲେ। ତାର ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେକ୍ସଟ ପାରକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ଯୋଉ ଉତ୍କଳୀୟ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆକାଶରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡେ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜଳଧାରା ହୋଇ ତଳକୁ ବହିଯାଏ। ଏପରି କେତେଗୁଡିଏ ଜଳଧାରା ମିଶି ଗୋଟିଏ ନାଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏପରି କେତେଗୁଡିଏ ନାଳ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ତଳକୁ ବହିଯାଏ ଓ ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖିଅଛି। ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନ ଗତି, ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳରେ ସେହି ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ମହାସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳର ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ହରାଇ ପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 1904 ମସିହାରେ ସେ ଉତ୍କଳୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆକାଶରୁ ଜଳ ପଡୁଛି ସେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ପଡୁଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହଉଛି ନା ଏକତ୍ରିତ ହଉଛି ଛୋଟିଏ ଝରଣାଟିଏ, ଛୋଟିଏ ଘର ଚାଳରେ ପଡୁଛି, ଛୋଟିଏ ଝରଣାଟିଏ ହେଇଛି। ସେଇ ଜଳ ଧାରାରୁ ପୁଣି ମିଶିକି ଛୋଟିଏ ନାଳାଟିଏ ହଉଛି। ତମେ ଦେଖିଥିବ ତମ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଆମେ ସହରରେ ଦେଖୁଛେ ଛୋଟିଏ ନାଳଟିଏ ହଉଛି। ସେଇ ନାଳର କଣ ହଉଛି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ନାଳ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ବଡ ନାଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନଦୀ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନଦୀ, ଆମେ ବହୁତ ନାଳ ଅଛି ସେଇ ନାଳ ଆଉ ନଦୀରୁ ଦେଖ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ କୋଏଲ ନଦୀ, ଇବ୍ ନଦୀ ଦେଖ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର ନିକଟରେ ଅଛି। ଇବ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର ଅବସ୍ଥିତ। ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ଯୋଉ ଆମ ଅଛି ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ, ସେ କଣ ହଉଛି ବିରାଟ ନଦୀ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ନଦୀ ପୁଣି ମିଶିକି କଣ ହଉଛି, ଇବ୍ ନଦୀ ମିଶିଲା, ସେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ରେ ଗଲା, ପୁଣି ମହାନଦୀ କି ଗଲା। ଏଇପରି ସେ ମହାନଦୀ ଗଲା କୋଉଠି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମହାନଦୀ କୋଉଠି ଗଲେ ନା ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଜଳବିନ୍ଦୁ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆଉ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସମ୍ପର୍କ, ଯେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଟୋପାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିମ୍ନକୁ ଗତି କରୁଛି। ସେହିପରିକା ସମୁଦ୍ର ଯଦି ପାଣି ଆମେ ଟିକେ ଆଣିବା, ଚାମଚରେ ଆଣିକି ଯଦି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ପକେଇଦବା, ସେ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି ତଳକୁ ତା ଗତି ହେଲା ନିମ୍ନ ଗତି, ତାର ଜାତୀୟ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳରେ ଯୋଉ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ହରାଇ ପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଉତ୍କଳୀ ମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ହରାଇବା। ଆମ ଜାତୀୟ ଗୁଣ ପରା ହଉଛି ଆମ ବୀରପୁରୁଷ, ଅତୀତର ବୀରପୁରୁଷ ମାନେ ଥିଲେ, କଣ ଥିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଥିଲେ। ସେ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲେ, ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇକିନି ମଗଧ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ, ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଣ ବୀରତ୍ୱର ଲଢେଇ କରିଥିଲେ। ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ହେଇ ଆମର କଳା ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ, କଳା ଘୋଡା ଦି ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଭଗବାନ ବଳରାମ କଳା ଧଳା ଘୋଡାରେ ଚଢି କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଟି ହଉଛି ପବିତ୍ର ମାଟି। ଏଇ ମାଟିରେ କାହିଁକି ଭିନ୍ନତା ହବ, କାହିଁକି ଏକତା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଯେମିତି ଯୋଉ ମହତ୍ଵ ଅଛି, ସେଇପରିକା ମଧ୍ୟ ଆମର ମହତ୍ଵ ହବା ଦରକାର। ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଝଗଡାକୁ, ଈର୍ଷାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଜଳ ତାର ଧର୍ମକୁ ରଖୁ, ଜାତୀୟ ଧର୍ମକୁ ହରାଏ ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜାତୀୟ ଧର୍ମକୁ ହରାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
बुझीथिबो पिले एटी गुटे केते गुटे साइड अछि आको लक्ष्य करूछ देख पिले एटी बिंदु बिंदु प्रथम चित्र रे म जोठी देइछि एटी बिंदु बिंदु जल आकाश रे पडुछि तापरे से बिंदु बिंदु जल छोटिया झराटे हेगिने पहाड़ पक्षरु बही आसुछि निम्न गति को जल धर्म कौन है जल धर्म है जे प्रथम वर्ष आकाश रे पडुछि आम घर छात उपरे खपर उपरे गछ उपरे पहाड़ उपरे नदी उपरे सब टाणी पड़ी रहुछि सेई जते पड़ी आछि से भूई की माँ पृथ्वी स्पर्श करुच्ची माँ पृथ्वी देख पहाड़ रूप से निर्जर हो जाऊँगी से कौटी मिसी जाऊँगी नदी हेगिनी पुणी समुद्र जो सात समुद्र अच्छी जो सिंधु अच्छी से सिंधु को मिसी जाऊँगी एवं से सिंधु को समस्त लक्ष्य कर यही सिंधु कौन होची आम सिंधु रु गोटे टपा बिंदु आनिबा जल ताकू जदि आम परीक्षा करवा यार गुण कौन सी देख आ तौक तौल खसीज एठी देख आकाश रू पड़ुची तेणु बिंदु हेल्ले जो धर्म सेमती समुद्र समुद्र पानी बिंदु आने से एका धर्म आम नेक्स्ट जीवा आम समस्त मन रखा उचित आंभ समस्त मन रखा उचित जे आम मान जातीय जीवन अच्छी सबु अवस्था सबु काल सब स्थान आम मैंने प्रत्येक जातीय जीवन टेक रखी कार्य करने एकांत आवश्यक से परामर्श दौरान अनुरोध कर आह्वान दौरान आम सब क्षेत्र में आम जातीय जीवन को टेक रखा आम आम जाति आम देश को आम माँ माटी को केवल आम निंदित करवा ना अपमानित करवा ना भूल लुंठित करवा ना जेबे कई जने ओडिया जाति को गाली दिए ताहले तुम्भ मन में राग हुए कहीं प्रश्न कर किए कह ओडिया जाति गाली देला जे ओडिया जाति मूर्ख ओडिया जातिर से निर्धन गरीब अशिक्षित जदि कहला आम से प्रश्न कर उत्कल सम्मेलन में ओडिया भाई मान उत्कलीय भाई मान कहीं आपण मान राग हुए कहीं एथर कारण निरूपण करने को गले स्पष्ट जना जीव जे जातीय जीवन चिन्ह पे मन पड़ुची तुम तुम घर को किए तुम बापा को किए गाली दब तुम कहीं तुम रागुच कहीं निश्चय तुम मन राग आस मो बापा को गाली दौर मो माँ को गाली दौर मो गाँ को किए गाली देला मो पड़ा को किए गाली देला निश्चय आम मन में क्रोध आसपरिका मो जदि मो जिला को किए गाली देला खराब बोली मो माँ माटी ओडिशा को बा उत्कल को किए गाली देला निश्चय आम देश को किए गाली देला निश्चय आमको राग आसो ये प्रश्न को देवे कहीं से ओडिया जाति को गाली दिए ताहले तुम मन में ओडिया जाति ए कारण निरूपण करने को गले स्पष्ट जनाजिव जे यह जातीय जीवन चिन्ह तो प्रकृत आम कहीं राग आसे यदि मो देश को किए गाली देला मो राज्य को किए गाली देला कहीं आमको राग आस यार कारण है जातीय जीवन चिन्ह ये हूँ जातीय जीवन तेणु जब जातीय जीवन चिन्ह आम मान अच्छी तेज आम प्रत्येक जेकोसी कार्य करूँ से निजक सर्वप्रथम तेरे प्रति उत्तर तेणु जो आम प्रत्युत्तर दबा आम जातिर गौरव बुद्धि हम कि ना मूल्य बढ़िले जातीय लोके तहु सफल भोगे कि ना सन्देह तुमने भावुछु तोषा मद कर बढ़ाइबू जाति मान तोषा मदियार कुकुर प्रकृति अईठा पतर ध्यान तेना तोषा मद क्या खुशामत कर तेल मारे आम जाति बढ़ ना कहते कठिन शब्द देखुच पिले आम नेक्स्ट पढ़ा आम कौन शिखिले आम जानले जल जातीय गुण हूँ निम्न गति बर्तमान आम जातीय को टेक रखा देखिपार ये गोटे जापान अच्छी जापान जाति विषय जापान जाति से जातीय मूल मंत्र हूँ प्राण जाऊ लक्ष्य जापानिकर प्राण जाऊ कि जापान जातिर वृद्धि हो तेणु जापान गोटे है मो जीवन जाऊ जमी ये गोटे आउ गोटे चित्र अच्छी देख ये चित्र कौन अच्छी कोणार्क मंदिर जो 1200 मसीह लांगुला नरसिंह देव तैयारी करते जो धर्मपद 12 वर्ष पिलाटी जो जाति 1200 महान कूल रखी मो 1200 बढ़ई रहतु पचे मुझी तेणु ये ही जापानी जात सहित तुलना कराई तेणु मुझे मरबी मुझे मो पूर्वपुरुष मैंने वृद्धि हम कठिन देख मूल मंत्र आम कौन शिखिले जापान जाति आम शिखिले जाति प्राण जाति भल पाइबा देखुच जापान जातिर संकेत आम बर्तमान समय अभाव आम पढ़ी आसवा प्रश्नोत्तर को बंधु मध्य उपस्थित सौदा पूर्ण आधुनिक ओडिशा नव निर्माता किए है देख पिले जाति अक्षर अच्छी मधुसूदन दास मधुसूदन राव ये गंधर नुह ये पिले हूँ चौल कवि गंगाधर मेहर फकीर मोहन सेनापति कौटा हम पिले ये चार सुंदर भाव में कौटी हम आधुनिक ओडिशा नवनिर्माता किए कहीपर निश्चय यही प्रबंध किए ओडिशा नवनिर्माता किए मधुसूदन दास। बहुत धन्यवाद।
मधुसूदन दास ओडिया जाति को उद्बोधन देवा डैशटी देशात्मक कविता रचना करथिले केतोटी कविता रचना करथिले 5टी 10टी 7टी बहुत धन्यवाद ताई है बहुत बहुत धन्यवाद। तृतीय प्रश्न होची जातीय जीवन प्रबंधटी जातीय जीवन प्रबंध भूल अच्छी जीवनी जातीय जीवनी प्रबंध द्यास अधिवेशन प्रदत्त अभिभाषण संक्षिप्त उत्कल सभा उत्कल सम्मिलनी उत्कल समिति उत्कल सम्मिलनी ओ बहुत बहुत उत्कल सम्मिलनी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सर्वप्रथम भाषा भित्तिक राज्य नाम कौन? ओडिशा बिहार बंगाल कर्नाटक गोटे पिले कह भाषा भित्तिक राज्य ओडिशा ओडिशा बहुत धन्यवाद। जातीय जीवन प्रतिष्ठा हेले जाति जाति मध्य डैश सृष्टि हेब शत्रुभाव सद्भाव 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 हाँ धन्यवाद धन्यवाद। 6 आत्मा डैश निकट पहुंचब प्रभु प्रभु स्वर्ग ईश्वर परपुरुष ईश्वर बहुत बहुत। 7 व्यक्तिगत सद्भाव डैश क्षण भंगुर बहुत सुंदर उत्तर दौच बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जाति मध्य भाव हेबा निमित्त डैश आवश्यकता अच्छी संपर्क जीवन प्राण मोह माया जीवन धन्यवाद। जीवन क्षणस्थायी जीवन काले डैश शेष हम श्मशान रे श्मशान रे बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य दल जातीय गुण डैश ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वगामी झरी पड़ा निम्नगामी निम्नगामी बहुत बहुत जपरी जाति संबंधी जातीय हुए से निम्न शब्द गुड़िकर परिवर्तित रूप कौन है लेख स्वर्ग संबंधी स्वर्गीय 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 जल संबंधी हाँ हाँ जल संबंधी जंगीय आउ थे जल्दी जल संबंधी जय हाँ हाँ ठीक कह जलीय जलीय धर्म संबंधी हाँ 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 धर्म संबंधी धर्मीय धर्मीय बहुत धर्मीय बहुत सुंदर उत्तर दौच बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कल संबंधी उत्कलीय ना उत्कल संबंधी उत्कल उत्कलीय विपरीतार्थबोधक शब्द लेख विपरीत अपोजिशन वार्ड है ना चिरस्थायी क्षणस्थायी क्षणस्थायी हाँ हाँ बहुत बहुत सुंदर उत्तर दौच असद्भाव सद्भाव 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 शिक्षित अशिक्षित अशिक्षित निम्नगति ऊर्ध्वगति मिथ्यावादी सत्यवादी सत्यवादी निंदा प्रशंसा प्रशंसा गृह कार्य एटा पिला अच्छी सप्रश्न सरलार्थ लेख जातीय जीवन प्रतिष्ठा हेले जाति जाति मध्य सद्भाव हेब जातीय मूल्य बढ़िले जातीय लोके तहिर सुफल भोग करिवे एथिरे संदेह ना ये सरलार्थ हमर बहिर अच्छी तमाने पिले तम शिक्षक शिक्षिका माध्यम सुंदर भाव लिखिब। धन्य 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 मधुसूदन उत्कल मातारा यज्ञ नंदन देई उत्कल को नव जीवन शिखाइल लोके जाति बंधन या लिखिंट व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति लिखिं तेणु मधुबाबू हूँ धन्य उत्कल यज्ञ संतान नंदन से उत्कल को नवजीवन देकिनी आम जाति को वंदना करने शिखाई बहुत धन्यवाद।